Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग देख चुके हैं टिल द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए आज हम उसके PYQs सॉल्व करते हैं along with the PYQs of locomotion and movement. Let's start. चलिए, locomotion and movement. Which of the following statement are correct regarding the skeletal muscles? Muscle bundles are held together by collagenous connective tissue called as fascicles. ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मसल बंडल्स एक दूसरे के साथ में कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़े रहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Striated appearance of the skeletal muscle fiber is due to the distribution of actin and myosin protein. बिल्कुल सही। M line is considered as the functional unit of contraction called as sarcomere. No, M line ये नहीं होती है, तो मतलब D जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मैच हो रहा है? दैट इज A, B and C ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। During muscular contraction, which of the following event occurs? H zone disappear होता है? Yes. A band wide होता है? No. I band की length reduce हो जाती है? Yes. Myosin hydrolyzes the ATP and releasing the ADP and PI, ये भी बिल्कुल होता है। Z-line attached to the actins are pulled inwards, ये भी बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा A, C, D and E only। ऑप्शन हो गया कौन सा बच्चों? B। Next, calcium is important in the skeletal muscle contraction because it binds to troponin to remove the masking of active site on actin for myosin. ठीक है, ये ऑप्शन आगे देख लेते हैं। Activate the myosin ATPase by binding to it, ये गलत है। मायोसिन से तो ATP का, मायोसिन से कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं है। Detaches the myosin head, ये भी बिल्कुल नहीं। Prevents the formation of bond between the myosin cross bridge and the actin filament, गलत है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चों A। Next, sliding filament theory can be the best explained as actin and myosin filament do not shorten but rather slide past each other. होल्ड पर रखते हैं इस ऑप्शन को, है ना। बाकी दूसरे पढ़ते हैं। When myofilament slide pass each other, myosin filament shortens while the actin filament do not shorten, ये गलत है। When myofilament slide pass each other, actin filament shortens while myosin filament do not shorten. Actin and myosin filament shorten and slide past each other. अब देखिए बच्चों, यहां पर फिलामेंट जो है वो तो कोई सा भी शॉर्टन नहीं होता है। एक्टिन और मायोसिन दोनों ही शॉर्ट नहीं हो रहे हैं, जबकि बैंड की लेंथ शॉर्ट हो रही थी। आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो रहा था। फिलामेंट तो दोनों में से कोई भी शॉर्ट नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों इसमें? ऑप्शन हो जाएगा ए। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, दोनों फिलामेंट शॉर्ट नहीं हो रहे थे, बट रैदर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Stimulation of muscle fiber by a neuron occurs at neuromuscular junction. कहां पर होता है ये? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। Which statement is correct for the muscular contraction? Length of H zone decreases, देखते हैं अभी। Length of A band remains constant, length of I band increases, length of 2 Z line increases. दो Z line के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होती, I band नहीं बढ़ता है। Length of H zone decreases and length of A band remains constant. Length of A band remains constant. ये डिक्रीज जो है वो होता है, पर लेंथ जो है वो H जोन की डिसअपियर हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा? बी। लेंथ ऑफ A band remains constant. नेक्स्ट, पाम बोन्स, ये पाम है हमारा। पाम बोन्स कौन सी होती है? मेटाकार्पल्स हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए। रिस्ट बोन्स जो है ये वाली, ये कौन सी हो जाएंगी हमारी? कार्पल्स। एंकल बोन जो है ये हो जाएंगी टार्सस। डिजिट बोन हो जाएंगी फेलेंजेस। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 1। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 1, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम देखना है। फ्लोटिंग रिब्स जो है, फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, ये हो गया ए। एक्रोमियन इज अ प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो किससे जुड़ी हुई होती है? क्लेविकल अटैचेस विद द एक्रोमियन प्रोसेस।
स्कैपुला, स्कैपुला लोकेटेड बिटवीन द सेकेंड एंड सेवेंथ वर्टिब्री, ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बच्चों 4, 3, 1 एंड 2, 4, 3, 1 एंड 2, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, there are 7 pairs of vertebrosternal, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs। 7 pairs of vertebrosternal सही है, 3 pairs of vertebrochondral ये भी सही है, and 2 pairs of vertebral ribs। vertebral ribs मतलब floating ribs जो सिर्फ vertebrae से जुड़ी हुई होगी। 8, 9 and 10 pair of ribs articulate directly with the sternum, ये गलत है। 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum, ये भी गलत है। Each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra and ventrally to the sternum, ये भी गलत है। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट, आउट ऑफ x pairs of ribs, how many pairs of ribs जो है ये बताना है इसमें। How x pairs of ribs in human, only y pairs are true ribs। मतलब x pairs यानी कि कितनी हो गई? 12 pairs of ribs है ना। 12 pairs of ribs में से y यानी कि ट्रू ribs कितनी हो जाएगी? 7। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। True ribs are attached dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। Which of the following is not the function of the skeletal system? Production of body heat, locomotion, production of erythrocytes and storage of minerals। तो प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स बोन मैरो से रिलेटेड है ये। लोकोमोशन जो है ये भी करवाती है हमारी बोन्स। प्रोडक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ मिनरल्स ये भी करवाता है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट जो है ये नहीं करवाता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। Bones do not play any role or skeletal system do not play any role in the production of body heat। 3 of the following pairs of the human skeleton parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and 1 pair is not matched। देखते हैं कौन सा पेयर मैच नहीं हो रहा है इसमें। Sternum and ribs, sternum and ribs are the part of axial skeleton। Clavicle and glenoid cavity, pelvic girdle, clavicle तो ऊपर है, कैविटी ऊपर है, पेल्विक गर्डल का पार्ट नहीं है। ह्यूमरस एंड अल्ना आर दी एपेंडिकुलर स्केलेटन, मेलियस एंड स्टेपिस आर दी ईयर ऑसिकल्स। तो इसमें से बी वाला जो है वो मैच नहीं हो रहा बच्चों, ठीक है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द 3 आइटम्स इन देयर ग्रुपिंग कैटेगरीज? करेक्ट मैचिंग बतानी है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, कॉक्सल बोन ऑफ द पेल्विक गर्डल, ठीक है। एक्टिन, मायोसिन, रोडोप्सिन मसल प्रोटीन नहीं, रोडोप्सिन मसल प्रोटीन नहीं है, ये आईज में प्रेजेंट होने वाला प्रोटीन है। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थियामिन आर पिरामिडीन्स, ठीक है। मेलियस, इनकस एंड कॉक्लिया ईयर ऑसिकल्स। कॉक्लिया जो है वो बेसिकली ईयर ऑसिकल में नहीं आता है, स्टेपीज आता है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ज्यादा इनकरेक्ट वाला कौन सा है हमारा? बी। इसीलिए व्हाई वी चूज बी? बिकॉज बी इज मोर इनकरेक्ट। In human body, which one of the following is anatomically correct? Collar bone 3 pair, collar bone 3 pair होती है। collar bone में ये वाली बोन कौन सी? क्लेविकल 3 पेयर नहीं होती। सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर नहीं होती। क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 होती है और फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 2 पेयर होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, डी। नेक्स्ट, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट स्कल में होता है, डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, ये हो गया ए। कार्टिलेजिनस जॉइंट, एडजेसेंट वर्टिब्रा अलाउज लिमिटेड मूवमेंट। हिंज जॉइंट जो है, हिंज जॉइंट होता है नी, हेल्प इन लोकोमोशन, सी। एंड फोर्थ वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, रोटेशनल मूवमेंट के लिए होता है, ये हो गया डी। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बच्चों हमारा 3, 1, 4 and 2. Let's find out 3, 1, 4 and 2. This will be our option. Next, match the list 1 and list 2. Scapula. Scapula कौन सी वाली बोन होती है? Scapula पीछे की तरफ में डॉर्सली लोकेटेड होती है, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन हो जाएगी पी। क्रेनियम जो है, क्रेनियम हो जाएगी हमारी फाइब्रस जॉइंट। लेट्स फाइंड आउट, पहले स्टर्नम देख लेते हैं अपन इसमें, है ना। स्टर्नम जो है वो हो जाएगी हमारी फ्लैट बोन, तो आर का हो जाएगा हमारा 2। अब देखते हैं अपन इसमें वर्टिब्रल कॉलम में फाइब्रस जॉइंट तो होता नहीं है, तो मतलब यहाँ पर क्रेनियम में आ जाएगा फाइब्रस जॉइंट।
तो ये हो जाएगा क्यू, और वर्टिब्रल कॉलम में हो जाएगा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये हो जाएगा एस। ठीक है, तो पी हो गया मतलब 4 3 2 एंड 1, 4 3 2 एंड 1, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्लियर, सिंपल सिंपल से पीवाईक्यूज है। The pivot joint between the atlas and axis, pivot joint which allows only 180 degree of rotation, यहां पर कौन सा ज्वाइंट होगा, ये कार्टिलेजिनस साइनोवियल ज्वाइंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन सा ज्वाइंट होगा, ये पाइवोट ज्वाइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, दिस इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। द कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जांपल ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट इन ह्यूमन इज फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। लिम्फ फिल्ड नहीं होता है। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन and fluid filled between the two joints provides cushion, skull bones। पहला वाला ऑप्शन सही है बच्चों, इसमें फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है दो बोन्स के बीच में, और एटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, विच इज अ टाइप ऑफ अ पिवोट जॉइंट। नेक्स्ट, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, एल्बो जॉइंट एक ही तरफ में मूवमेंट होगा, हिंज जॉइंट ए। ठीक है, what is the name of joint between the ribs and sternum? sternum और ribs कौन सा joint होगा, ये कार्टिलेजिनस joint होगा, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। the joint between atlas and axis, atlas और axis के बीच में pivot joint allowing 180 degree of rotation only। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन और रीजन है। असर्शन देखते हैं, osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture। ठीक है, common cause of osteoporosis is increased level of estrogen। गलत, decreased level of estrogen। assertion correct, but the reason is not correct। answer B। which of the following is a correct match for disease and its symptom? arthritis, inflamed joints। ठीक है, टिटनी, high calcium level causing rapid spasm, low calcium level। myasthenia gravis, genetic disorder, no, this is an autoimmune disorder। muscular dystrophy is an autoimmune disorder, no, this is a genetic disorder। ठीक है, तो यहीं पर अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सारे ऑप्शंस हमने देख लिए, और ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। Which of the following muscular disorder is inherited? is inherited। ठीक है, अब inherited में कौन सा होना चाहिए, जेनेटिक होना चाहिए। अभी हमने देखा जेनेटिक कौन सा होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो इनहेरिटेंस किसका होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, चलिए, तो ये हमारे लोकोमोशन के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए। अब हम आगे देखते हैं अबाउट दी PYQs of neural control and coordination। चलिए, let's start with the PYQs of neural control and coordination। Question number 1, select the incorrect statement regarding the synapse। The membrane of presynaptic and postsynaptic neurons are in close proximity in an electrical synapse। ठीक है, close proximity में होते हैं electrical synapse में। Electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapse। ठीक है, होल्ड पर रखते हैं। Chemical synapse use neurotransmitter। Impulse transmission across a chemical synapse is always faster than the across an electrical synapse। Impulse transmission chemical synapse में slow होता है as compared to that of electrical synapse, क्योंकि electrical synapse में गैप नहीं होता, पर इलेक्ट्रिक केमिकल साइनेप्स में गैप होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निसल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर। राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं उसमें। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। श्वान सेल्स माइलिन शीथ का प्रोडक्शन करते हैं इन द न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस, और ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूस करते हैं इन द न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस। रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन
पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कहां होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। दिस इज द फिगर। अब ये फिगर में हमें देखना है ए टू डी, हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो ए जो है ये हमको दिखाई दे रहा है एक्सॉन, डी है सिनेप्टिक वेसिकल्स, बी है न्यूरोट्रांसमीटर और ये है रिसेप्टर्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए, ए एक्सॉन टर्मिनल है और बी सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं, बी इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एंड डी रिसेप्टर कैप्सूल्स है। सी इज रिसेप्टर एक्शन पोटेंशियल एंड सी इज न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी गलत है। सी इज रिसेप्टर एंड डी आर सिनेप्टिक वेसिकल, सी इज रिसेप्टर एंड डी आर सिनेप्टिक वेसिकल, ये वाला सही है। तो ऑप्शन मैच हो गया बच्चों हमारा सी। ड्यूरिंग द propagation of nerve impulse, the action potential results from the movement of sodium ion from extracellular fluid to intracellular fluid, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ में सोडियम का इनफ्लक्स होगा, that will result into the generation of action potential. During the transmission of nerve impulse through the nerve fiber, the potential of the inner side of the plasma membrane has which type of electrical charge? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अगर होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू द नर्व फाइबर, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच चार्ज? तो पहले अंदर की तरफ में नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर वापस से नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। ठीक है, पहले नेगेटिव होगा अंदर, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वापस रिपोलराइजेशन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। In the resting state of the neural membrane, the diffusion due to concentration gradient, if allowed, would drive. In the resting stage of neural membrane, diffusion due to concentration gradient, if allowed, would drive potassium into the cell or potassium and sodium out of the cell, sodium into the cell, sodium out of the cell. पर यहाँ पर ऑप्शन होगा पोटेशियम इनटू दी सेल, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी न्यूरॉन के द्वारा शो की जाती है, पर सोडियम के लिए द एक्सोनल मेम्ब्रेन वाज ओनली लेस परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल। ठीक है, व्हाट यूज्ड टू बी डिस्क्राइब्ड एज निसल ग्रैन्यूल्स इन द नर्व सेल? निसल्स ग्रैन्यूल्स राइबोसोम्स डिस्क्राइब करेंगे निसल्स ग्रैन्यूल को। Which of the following statement is correct for the node of Ranvier? Node of Ranvier, myelin sheath is discontinuous. Both neurolemma and myelin sheath are discontinuous. Covered by myelin sheath, neurolemma is discontinuous. Myelin sheath is discontinuous. Node of Ranvier कैसे बनता है? Node of Ranvier is the place where myelin sheath is absent. The junction between the axon of one neuron and the dendrite of another neuron, this is called as the synapse. क्या कहा जाएगा इसे? Synapse. Which of the following is regarded as a unit of nervous tissue? Unit of nervous tissue is called as neurons, है ना? The Nissls granules of the nerve cells are made up of. Nissls granules are made up of ribosomes. वैसे अपन बोलते हैं राइबोसोम एंड RER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर यहाँ पर प्रोबेबल ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है हमें? राइबोसोम। Next, match the list 1 with the list 2. Pons. Pons connect the different regions of the brain. A. Hypothalamus provides additional space. No, controls respiration, neurosecretory cells. Hypothalamus has neurosecretory cells. C. Controls respiration, है ना? Medulla respiration को control करता है. Cerebellum provides additional space for neurons. ये हो गया D. तो मतलब हो जाएगा 3, 4, 2 and 1. 3, 4, 2 and 1. ठीक है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं बच्चों। Given below are the two statements. The cerebral hemisphere are connected by the nerve tract known as corpus callosum. The brain stem consisted of medulla oblongata, pons, and cerebrum, not cerebrum, midbrain, medulla, and pons. So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option हो जाएगा यहाँ C. Brainstem of human made up of midbrain, pons and medulla. Midbrain, pons and medulla. The part of human brain that helps in the regulation of sexual behavior, expression of excitement,
pleasure, rage, fear, etc. Limbic system and hypothalamus. Limbic system and hypothalamus. Which part of the brain is responsible for the thermoregulation? Hypothalamus is responsible for the thermoregulation. मैच दी कॉलम है, देखें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है controls the respiration in cardiovascular center. Limbic system, production and releasing the hormone bands of the fiber. देखते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो है यस ये हो गया हाइपोथैलेमस का सी. कॉर्पस कैलोजम, बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा डी. तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है. तो इनकरेक्टली पेयर्ड में हो जाएगा लिम्बिक सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट, द सैजिटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज शोन हियर. आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा है. ए है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बी जो है ये हो जाएगा हमारा थैलेमस, सी जो है ये हो जाएगा हमारा पॉन्स, और डी दिस इज सेरिबेलम. ठीक है. अब देखते हैं इसमें सी मिड ब्रेन को शो कर रहा है, नहीं. ए सेरिब्रम को शो कर रहा है, यस. सी जो है ये पॉन्स को शो कर रहा है. ठीक है. बी इज कॉर्पस कैलोजम, नो. ए इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यस. एंड बी इज सेरिबेलम. सेरिबेलम इज नॉट बी. तो बच्चों यहां हमारा प्रोबेबल ऑप्शन हो जाएगा बी. ए इज सेरिब्रम एंड सी इज पॉन्स. दिस विल बी अवर प्रोबेबल ऑप्शन. अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो पीवाईक्यूज हैं लोकोमोशन और मूवमेंट के और न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के, दोनों के पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं. चैप्टर भी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है. आई होप आप लोगों ने इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी और साथ ही साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगाई होगी. अब बच्चों इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द न्यू चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. टिल देन, गुड लक एंड स्टडी वेल, डू वेल.